Welcome back to my YouTube channel, people. How are you doing? Today we are going to talk about a very dark time, a very dark person. It's about Jeffrey Dahmer. आप लोगों ने ये नाम पहले सुना हो या नहीं सुना हो, either way it's going to be a hell of a video. I think him and Ted Bundy are the two most famous serial killers of all time. He did some gross stuff to deserve that reputation. So let's just dive in. And I don't know, लोगों को कैसी videos देखना पसंद है serial killings वाली, लंबी या छोटी. I'm going to do a short version of this, a summary, but if you want a long one, I'll be happy to do it. Let me know in the comments. So let's start. So Jeffrey Dahmer was born in US and he was a very happy child in the beginning. All these serial killers, they have a very horrible childhood, and same with Jeffrey also. He was neglected at home, he was not happy, he was not looked after, etc etc. And at the age of 4 he had a double hernia operation, and uske pehle it was noticed that Jeffrey was very happy as a child. He was very indulgent in all the normal activities, but this operation changed something in him. Now we don't know what that is, but it was something that his parents and neighbors and the people around him seemed to notice. So from an early childhood he had seen his parents fighting in front of him, and their relationship was so bad that his dad did not used to stay at home. His mother was very depressed. I mean, what can I even say? I feel bad for them and I feel bad for this kid. And at one point, the relation between his parents and the marriage between his parents was so bad that they shifted into separate bedrooms. At one point, his mother also attempted to commit suicide. So there were a lot of emotionally troubling things going on for a child. ये जो छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, ये अकेले रहता था. इसकी मम्मी इसको नहीं देखती थी, इसके पापा इसको नहीं देखते थे. एंड तो उसकी मम्मी एकदम अलग रहती थी सबसे, इन हर बेड, टेकिंग हर ओन पिल्स, फाइटिंग. बेसिकली ही हैड नो अडल्ट जो उसका ध्यान रख सके. थोड़े टाइम बाद इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही वॉज सेक्शुअली मोलेस्टेड, एंड लुकिंग एट द इंसिडेंट्स it could have happened. Please understand, by any chance I'm not trying to convey कि he was not responsible or he was innocent or anything like that. I'm just feeling compassion for an innocent child. So when he was growing, his teachers described him as shy and silent. And I think बहुत सारे serial killers के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत सीधे लगते हैं, shy लगते हैं, तो लोग उनको पहचान ही नहीं पाते. मतलब लोगों को ऐसा लगता है अरे ये करेगा मर्डर, ये तो बोल भी नहीं पाता हमारे सामने, ये क्या मर्डर करेगा. बट एनीवे, व्हाइल ही वाज ग्रोइंग ही हैड सब्सटेंस इश्यूज. ही यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल. ही वाज ओनली 14-15 years old, 12-13 years old, जिसकी वजह से हिज ग्रेड स्टार्टेड टू डिक्लाइन. व्हेन ही वाज लिटिल ही टुक वेरी मच इंटरेस्ट इन रोड किल मतलब जो रोड पे एनिमल्स पड़े हुए रहते हैं, ही यूज्ड टू ब्रिंग देम होम, ही यूज्ड टू डाइसेक्ट देयर बॉडीज and do weird stuff with it. ये देख के पता चल जाना चाहिए था कि this child is not normal. And then there was this one very particular disturbing incident. There's this dog on the side of the street and Jeffrey brings him and वो उसका सर काटता है उस डॉग का. उस डॉग के सर को अलग करता है बॉडी से एंड बॉडी पेड़ पे बांध देता है. I mean, how weird is that? And वो ये एक फ्रेंड को दिखाने के लिए लाता है. I mean, he's proud of what he did. तो नाउ वी कैन सी कि ही हैज़ डेवलप्ड इनटू दिस वियर्ड मैन जो आगे जाके कुछ तो क्राइम करने वाला है. वन डे व्हेन देयर होल फैमिली वाज हैविंग डिनर, जेफरी इज लाइक, ही सेज टू हिज डैड, पापा ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बोन्स अलग कैसे करते हैं और इनकी बोन्स प्रिजर्व कैसे करते हैं. उसके पापा को लगा कि ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन साइंस, सो आई शुड प्रोबेबली टीच हिम. आई थिंक दैट वाज हिज फर्स्ट लेसन ऑफ हाउ टू प्रिजर्व बोन्स. एंड ये सब शेडी काम जितना भी करना है वो ढंग से सीख रहा था प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर. एंड ही ऑल्सो हैड अ यंगर सिबलिंग, अ ब्रदर, एंड देन दिस हॉरिबल थिंग हैपन्स टू हिम. And I cannot imagine it happening to me. And so you remember I told you his parents had a very bad marriage and his mother was depressed. वो स्कूल से घर आता है and he finds his mother missing. बाद में पता चलता है कि उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को लेके चली गई एंड शी काइंड ऑफ अबैंडन्ड हिम एंड ही इज़ ओनली 17. एंड आई मीन आई नो 18 इज़ द लीगल एज फॉर अडल्ट्स, बट रिमेंबर व्हाट वर यू डूइंग एट द एज ऑफ 18. और वो ना बहुत फ्रेजाइल टाइम होता है हमारी लाइफ में. दीज आर द मोस्ट important and crucial years of our life. So anyway, this all happens to him, and then his dad finds a partner pretty soon.
and then his dad gets him enrolled in a business college, so he goes there. But वहाँ पे जाके भी he had substance issues. Remember I told you he had alcohol issues. तो वहाँ पे भी due to alcoholism he suffered like 0.5 GPA. I don't know how anybody can do that, score that less, but he did. Wow, achievement. Anyway, so he decided it was best for him to drop out of school, and he did. Kuch time बाद he enlists in the army, goes to the army, and वहाँ पे भी of course इंसान की फितरत नहीं बदलती कभी, always remember that. वहाँ पे भी जाके he started raping people. 2 men confessed कि उसने उनको रेप किया था, काफ़ी बाद में confession हुआ था ये. Anyway, because of his alcoholism he couldn't even sustain there. इसमें एक बहुत क्रूशियल डिटेल बताना भूल गई. आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज गे, सो ही वॉज अट्रैक्टेड टू मैन ओनली एंड ओनली मैन. नाउ दिस वॉज द इंफॉर्मेशन कि उसने कैसे कैसे सफ़र किया एंड वॉट आर द इवेंट्स दैट मे बी शेप्ड हिम टू वॉट ही वॉज and what he became. तो अब उसके murders की बात करते हैं थोड़ी. When he was just 18, he just met a random hitchhiker and that hitchhiker was walking down the road. तो he picked him up and he's like कि okay come on bro, let's have some beers like that. Okay, ऐसे कि normally chill करते हैं, आ जाओ भाई घर पे. And वो hitchhiker बेचारा बंदा वो चला गया उसके घर पे. They drank a couple of beers, they talked over. Dahmer अपने victims को लाता था, अपने घर पे रखता था, चाय कॉफ़ी पानी उनको पिलाता था, उनकी खातिरदारी करता था अच्छे से. And when they were about to leave, that is when he killed them, because he felt कि he will be abandoned. And I mean, it's very sad to feel as a person, but I mean, dude, what were you thinking? एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने, and not only एक इंसान के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, सबको ट्रॉमा दिया है तुमने. तो anyway, he brought this hitchhiker home, उसे दारू पानी पिलाया उसने, जो भी उसे पिलाना था उसे. And then when he was about to leave, he killed him. And wait for it, उसकी dead body पे खड़े होके जेफरी डैमर masturbated. I mean, ew. Yeah, pretty disturbing, I know. Very disturbing. This man was a very, very, very disturbed man. And this guy was not improving. Of course, how could he? He was very dark and weird. His stepmother and his father थॉट कि इसको इसकी दादी के पास भेज देते हैं, कि दादी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी. इट्स सेड दैट वो जब अपनी दादी के पास गया था इन द इनिशियल मंथ्स ही वॉज वेरी रिलीजियस, सारे काम करता था वो अच्छे से, यू नो, एंड उसने एक जॉब भी मेंटेन करी 10 महीने तक, जो उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी. सो यू नो लाइक दैट. बट ही वॉज जेफरी डैमर. उसका तो दिमाग ट्विस्टेड था. kept killing more and more people. And serial killers का ना सबका एक पर्टिकुलर मेथड होता है मारने का, एंड जेफरी डैमर का भी एक पैटर्न था सारे सीरियल किलर्स की तरह. तो व्हाट हैपेंड कि ही यूज्ड टू ब्रिंग हिज विक्टिम्स होम, उनको वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स दे देता था, एंड व्हेन दे वर अस्लीप उनको मार देता था वो स्ट्रैंगल करके. एंड ही वाज नॉट अ सैडिस्ट. उसको ये नहीं चाहिए था कि दूसरा इंसान सफ़र करे, उसको चाहिए था उसको चाहिए था कि कोई पीसफुली पास करे अपनी स्लीप में, एंड उसको वो इंसान रखने का और उनकी उस इंसान के साथ रहने का मौका मिले उसको. सो एनीवे दिस, तो ये ऐसा ही करता था. तो एक अपने विक्टिम्स को लाता था घर पे. ही यूज्ड टू स्पाइक देयर ड्रिंक. स्पाइक मतलब उनकी ड्रिंक्स में कुछ सब्सटेंसेस मिला देना. वो स्लीपिंग पिल्स मिलाता था उनकी ड्रिंक्स में, एंड देन ही यूज्ड टू स्ट्रैंगल देम. मतलब दिस इज़ वॉट ही डिड मोस्टली. बस एक बार उसने एक बंदे को मारा था गर्दन काट के, एंड दैट वॉज बिकॉज उसके पास इनफ स्लीपिंग पिल्स नहीं थी उस दिन के लिए. हाँ, छोड़ देता भाई बेचारा बंदा. एंड उसकी दादी ने भी उसको घर से निकाल दिया बिकॉज ही यूज्ड टू ब्रिंग मैन लेट एट होम, एंड बेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती थी. एंड आई मीन किसी ने चेक ही नहीं किया कि है क्या बेसमेंट में, ऐसा स्मेल क्यों आ रही है. whatever, sometimes things happen. And his father once thought to check the basement, and उसने जेफरी से बोला I'm going to see what's in this trunk, and जेफरी ने smartly topic avoid कर दिया. एंड जब उसकी दादी ने उसको घर से निकाला, ही फाउंड अ 1 bedroom apartment, एंड वहाँ पे भी वो वही करता था. एंड हाउ ही पिक्ड बॉयज वॉज ही यूज्ड टू पिक देम एट गे बार्स. उनको बोलता था जनरली कि मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ हैंग आउट करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, न्यूड फोटोग्राफी करूंगा उसके, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. एंड मोस्ट ऑफ दीज मेन वर पुअर, सो दे डिड यूज टू गो टू हिज प्लेस. एक बार अगर इंसान पहुंच गया उसके चंगुल में, फिर ही यूज टू किल देम.
ही वॉज अ वेरी वियर्ड, मतलब मैं कितनी बार वियर्ड बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, कितना ट्विस्टेड होता है कुछ लोगों का दिमाग. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि कुछ लोग कैसे निकल सकते हैं ऐसे डिस्पाइट ऑफ वट एवर हैपन टू देम. सो ही यूज टू स्टोर जितने भी उसके विक्टिम्स थे उनके सर या कुछ मेमोरियल काइंड ऑफ लाइक अ रिवॉर्ड. एंड ये मोस्ट सीरियल किलर्स करते हैं, दे स्टोर समथिंग लाइक दैट एज काइंड ऑफ अ विक्ट्री. उनको लगता है अरे ये हमारा प्राइज है. ही यूज टू ईट द फ्लैश ऑफ दीज मैन. आई मीन, अब मैं उसका लास्ट इंसिडेंट बताती हूँ. सो लास्ट इंसिडेंट ऑल्सो ही पिक्ड अप अ ब्लैक मैन फ्रॉम अ गे बार एंड ही टोल्ड हिम कि ही वुड पे हिम $100, मतलब काफ़ी पैसे होते थे उस टाइम के हिसाब से. तो ही वुड पे हिम $100 जस्ट टू हैंग आउट विद हिम. तो वो बंदा चला गया उसके घर पे एंड देन जेफरी उसको अपने घर पे लेके गया एंड देन ही वॉज लाइंग विद हिम एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जेफरी टेल्स हिम कि आई विल रिप योर हार्ट आउट. साइड से ऑलरेडी बहुत स्मेल आ रही है. ऑफकोर्स उसने सारी बॉडीज़ वगैरह भी वहीं पे छुपाई हुई हैं. एक ट्रंक रखा था उसके बेडरूम में जहाँ से भी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी. सो दिस मैन सस्पेक्ट्स कि देयर इज समथिंग. थैंकफुली ही डिड. से बात करते करते जेफरी उस पर हैंडकफ्स लगा देता है. ये बंदा बहुत बुरी तरह डर चुका है, इसको नहीं पता इसको क्या करना है, बस ही इज़ थिंकिंग अबाउट सेविंग हिज लाइफ. तो इसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन हो चुकी है. तो ही सेज टू जेफरी कि आई वॉन्ट टू यूज़ योर वॉशरूम एंड देन जेफरी इज़ लाइक ओके यूज़ माई वॉशरूम इफ़ यू वॉन्ट. वो वॉशरूम जाता है एंड देन ही थिंक समथिंग और एनी थिंग. देन ही कम्स बैक. वो देखता है कि जेफरी इज़ नॉट रियली पेइंग अटेंशन. ही इज़ नॉट इन एन अटेंटिव मोड. तो ही जस्ट हिट्स हिम एज हार्ड एज ही कैन और वो उसके घर से बाहर भाग जाता है. एंड थैंकफुली दिस गाय एस्केप्स. ही गोज स्ट्रेट टू द पुलिस एंड उफ, इट्स लुकिंग सो बैड. मीन फाइनली ये बंदा पुलिस को लेके जाता है जेफरी के घर एंड देन स्टिल जेफरी सो कूल कि नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो उसको बस ऐसे ही बेफ्रेंड करने की इंटेंशन से लाया था. फिर वो उसके बेडरूम में जाते हैं एंड देन दे फाइंड कि उसके बेडरूम में फोटोज़ पड़ी हुई है विक्टिम्स की, बॉडी पार्ट्स की, डिस्टर्बिंग इमेजेस. उसके घर से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है. एंड देन दिस गाय ओपन्स द फ्रिज एंड देन ही सीज कि एक इंसान का कटा हुआ सर रखा है फ्रीज़र में. तो ऑफ कोर्स पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है. एंड आई मीन दैट वाज इट. ही वाज अरेस्टेड. एंड आई डू लाइक वन थिंग अबाउट जेफरी डैमर विच इज़ दैट उसने किसी को ब्लेम नहीं किया. एंड ही ऑल्सो स्पोक टू अ जर्नलिस्ट टू होम ही सेड कि अगर मुझे रोड पे वापस छोड़ दिया जाएगा तो देर इज़ नो वे इन हेल कि मैं मर्डर स्टॉप कर पाऊँ, कि मैं. दिस वॉज द डिस्टर्बिंग स्टोरी टेल ऑफ जेफरी डैमर. यू नो व्हेन ही वॉज इन जेल, बोलते हैं ना कर्मा, एक दूसरे इनमेट ने उसको मार दिया बिकॉज दैट इनमेट सेड कि he was just disgusted by the crimes of Jeffrey Dahmer. He got his karma in the end after all. It deeply saddens me that वो फिर भी इतने सारे लोगों को मार पाया, इतने victims, इतनी लाशें, इतना दुख. ये बहुत रिकरिंग प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि जब तक हम बच्चों को एम्पथी नहीं सिखाएंगे दे आर नॉट गोइंग टू लर्न एम्पथी. जेफरी डैमर ऑल्सो सेड इन एन इंटरव्यू कि वो जब अपने victims को मारता था तो सिंपली उसको ऐसे आदत हो गई थी उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने की. तो ही यूज टू व्यू देम एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर एंड नॉट पीपल एनी मोर. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो हम सबको अपने बच्चे, nieces, nephews and as teachers also it's a very imperative duty कि हम अपने बच्चों को compassion की importance सिखाएं, empathy सिखाएं. And I think it all begins with animals, क्योंकि अगर आप एक बार animal को मार देते हो या आप animal के साथ mistreat करते हो, या जैसे this guy used to take roadkill and वो उसकी bones और flesh को अलग करता था, आप वैसे करते हो तो you somehow learn these things. तो in the first place these things should be discouraged. And I think we can have a lot of suggestions and opinions and debates about that. But the fact is कि ये आज भी हो रहा है and it is our collective duty कि हमें जब भी कुछ ऐसा दिखे हम पुलिस authorities को notify करें. So yeah, that's it. My makeup is done. Glowy, daytime, peachy kind of a makeup. And yeah, I'll meet you in next video. Bye-bye.